सो आज 50 क्वेश्चन जीके के होंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में लॉजिकल, ठीक है। रेडी? सो which is the only mammal that is capable of true sustained flight? Which is the only mammal that is capable of true sustained flight? If you knows the answer, then very good. नहीं पता तो the answer is bat, ठीक है। The answer is bat. इसलिए मैंने कहा आज क्वेश्चन थोड़े हार्ड हैं। नेक्स्ट, what is a baby dog called? That is, I think, very good. Puppy. Good. The answer is puppy. Now, the next question. Which water animal has 8 arms? Very good, Vedant Tiwari. Good. Octopus. Now, the next question. What do we call a home made by a spider to catch insects? बताओ. It's good. The answer is web, not net. Web. ठीक है. Next. Which farm animal gives us egg? Hen. Good. Hen or duck. Duck भी होती. Next. What is a baby cat called? Baby cat called. Very good. Good. Don't raise your hand. Don't raise your hand. That is kitten. The chat box is already enabled. आप chat box में लिख सकते हो, ठीक है, आंसर्स। क्लियर? वेरी गुड। नेक्स्ट, which animal is known as the king of the jungle? Very good. Lion. Yes. Now, which insect glows with its own light at night? बताओ, कौन सा एनिमल जो ग्लो करता है? फायरफ्लाई, हिंदी में जुगनू, है ना? Now, next, what do we call a large group of fish swimming together? अब ये बता। वाह, वैदिक अग्रवाल ने लिखा है स्कूल। अच्छा, ओके, वेरी गुड। द आंसर इज स्कूल और सोल। स्वाम नहीं, स्वाम नहीं, स्कूल और शोल। मतलब मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था इसको स्कूल कहा जाता। ठीक है, और वेदांत यार सबसे पहले आंसर है स्कूल। गुड। Now, what is the green substance in leaves that helps them trap sunlight? चलो बताओ। So very good. The answer is chlorophyll. आंसर तो आया सबसे पहले इसका, लेकिन नाम नहीं है। नाम की जगह पे आ रहा है मेरे पास OPOCPH। गुड आफ्टरनून श्रीकांत।
Next question. Which vegetable grows underground and is commonly used to make French fries? Very good. Realme RMX अभी क्लोरोफिल पे ही अटके हम. The answer is potato. Good. Now the next. What part of plant blooms first before changing into a fruit? चलो बताओ. So the answer is flower. वैदिक अग्रवाल the first one who give the answer. Yes, जिसका सबसे पहले आंसर आएगा उसका नाम दिया जाएगा. That is flower. ठीक है. नेक्स्ट. अब आ रहा है आंसर. सबके सब चैट बॉक्स में आंसर बताने के बाद चैट बॉक्स में लिखोगे मैं खुश नहीं हो जाऊंगा बिट्टू. द मेन थिंग अगर आपको आ रहा है सो गुड. नहीं आ रहा है टेक द स्क्रीनशॉट. तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए. ठीक है. दिस क्लास इज फॉर योर ग्रोथ नॉट फॉर इम्प्रेसिंग मी. है ना. आ रहा क्वेश्चन वेरी गुड. नहीं आ रहा तुरंत स्क्रीनशॉट लो. चैट बॉक्स में मेरे आंसर बोलने या आंसर दिखाने के बाद क्यों आंसर देना. जब मैंने कह दिया मैं सिर्फ पहले बच्चे का नाम लूंगा. And do not raise your hand. Don't raise your hand. Because I'm not going to unmute anyone. Next. Which fruit has its seeds on the outside instead of the inside? Wow. सच में? I don't know यार. Let's check it out. Good. Strawberry. Very good, Akadik. Good. लिटरली इस फैक्ट मैंने कभी ध्यान नहीं दिया कि स्ट्रॉबेरी में क्या की जो सीड्स होते हैं वो बाहर होते हैं. वेरी गुड. Now, what do we call plants with very weak stems that grow along the ground like a watermelon plant? Very good. Wow. The answer is creepers. वैदिक अग्रवाल. गुड. इससे मतलब वैदिक अग्रवाल और वेदांत इन दो की बहुत ही बढ़िया जीके हो रखी. ठीक है. नेक्स्ट. What kind of plant has thorny stems and is famous for growing in dry desert? ये आसान. Yes. Good. Well. That is cactus. पूरे डेजर्ट में सबसे ज्यादा कैक्टस ही आपको दिखेंगे. ठीक है ना. नेक्स्ट. Which yellow fruit grows in hanging bunches and is peeled from the top before eating? Wow. Very good. That is banana. Banana. Good. Next. What do plants produce that help them reproduce and grow into new plants? अब बताओ. Very good. The answer is seeds. Good. मुझे लगा ये क्वेश्चन हार्ड होंगे लेकिन यहाँ बच्चे बहुत जल्दी आंसर दे रहे हैं. बच्चे ही दे रहे हैं ना कहीं मम्मी पापा दे रहा हूँ बगल में से बैठे बैठे. Okay, now next one. Which flower always turns into face to look forward the sun? Means उस फ्लावर का नाम बताओ जो जिधर जिधर सन जाएगा उधर तो वो फेस करता है. आंसर इज सनफ्लावर. गुड. नेक्स्ट.
Ayans, what are you typing? Now, next, what do we call a baby plant that has just started growing from a seed? Batao. What do we call a baby plant that has just started growing from a seed? Seedling or sprout? स्प्राउट खाए हो ना, खाते हो ना, सब खाते हैं. Now, next, what is the name of the planet we live on? Yes, yes, that is Earth. हम अर्थ पे रहते हैं ना. Now, what do we call the moving air that we can feel but cannot see? Good. सब अर्थ पे ये भी टिके हो, यहाँ पर आंसर आ गए. That is wind. एयर नहीं, एयर तो खुद ही बोला, मूविंग एयर दैट वी कैन फील बट कैन नॉट सी. Wind. Next, what form of water falls down from the clouds during the rainy season? Answer is raindrops or rain. Raindrops भी कह सकते हो और rain भी कह सकते हो. Droplets of water? No. Next, what natural arc of seven colors can sometimes be seen in the sky after it rains? Good. Vaidik Agrawal, can you please raise your hand? Vaidik Agrawal. Oh, good. Well done, dude. Good job. The answer is rainbow. Because अभी तक वैदिक ने मैक्सिमम का सभी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया है एंड सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन सबसे पहले दिया है. अभी लोग लास्ट क्वेश्चन के ही आंसर टाइप करने में बिजी है, इन्होंने इसका आंसर दे दिया. दैट्स अमेजिंग. नेक्स्ट, व्हाट इज द जाइंट बॉल ऑफ हॉट ग्लोइंग गैस at the center of our solar system? Yes, that is sun. Good. Next, what is the gaseous form of water that rises into the air when water is boiled? जब पानी वाटर को बॉईल करते हैं तो कुछ गैस की तरह उड़ता है, उसको क्या कहते हैं? वेरी गुड. दैट इज स्टीम और वाटर वेपर. आइस नहीं बोलते. कभी आइस को उड़ते हुए देखा है यार? हैं? आदित्य कुमार, आइस हवा में उड़ता है. राइट द आंसर आइस. कुछ भी. वाह, वन प्लस अभी रेनबो पे अटके हुए. वेरी गुड. दैट इज स्टीम और वाटर वेपर. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट डू वी कॉल अ स्मॉलर बॉडी ऑफ फ्लोइंग फ्रेश वाटर दैट लीड्स इनटू अ रिवर? स्ट्रीम और ब्रूक, नॉट पॉन्ड. पॉन्ड नदी में जाके मिलता है क्या? हाँ. सुना ना, गर्म पानी का झरना है, गर्म पानी का तालाब. दैट इज स्ट्रीम और ब्रूक. हाँ, अब तक नहीं पता. नेक्स्ट, what is the name of Earth's only natural satellite that
shines in the night sky? Yes, good. That is moon. मून अर्थ की इकलौती नेचुरल सैटेलाइट है. ठीक है, मैनमेड तो बहुत सारी. नेक्स्ट, what white or gray object in the sky are made of tiny drops of water clusters together? Good. That is clouds. Next, what do we call the shaking of the earth's surface caused by movement deep underground? Unanimous. Very good. That is earthquake. Good. Now, next question. What is the national bird of India? वाह, इतनी कुछ ज्यादा तेजी से टाइपिंग होगी. कब पहला लाए पता ही नहीं चला मुझे. Okay. Within a second, more than 10 messages. So, मैं नेम ले रहा हूँ. शिवांश जायसवाल, विनय मिश्रा, वैदिक अग्रवाल, वेदांश तिवारी एंड ईशा सिंह. ये वो नेम जिन्होंने मतलब सेम टाइप पे लगता है मुझे भेजा है. ठीक है. यस, द नेशनल बर्ड इज पीकॉक. गुड. नेक्स्ट, व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? वेरी गुड. गुड. शिवांश जायसवाल, रोज कब से नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया हो गया भाई? नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया इज lotus, not rose. So lotus, वैदिक अग्रवाल, विनय मिश्रा एंड थर्ड ईशा सिंह. इन्होंने सबसे पहले आंसर दिया. ठीक है. ये देखो, लोटस नॉट रोज. जब नहीं आ रहा है तो पहले जानो क्या है. चैट बॉक्स में अगली बार मैं चैट बॉक्स डिसेबल कर दूंगा. फिर आप लोग अलग ही उसमें बिजी हो जा रहे हो. नेक्स्ट क्वेश्चन. रेडी? When do we celebrate Republic Day in India every year? खतरनाक. यस, 26 जनवरी. गुड. अच्छा, आप बताओ इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है? व्हेन वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे? यस, 15 अगस्त. ठीक है. तो इसमें कंफ्यूज ना होना कि रिपब्लिक डे आप लोग इसको इंटरचेंज कर देते हो. रिपब्लिक डे पूछा गया तो आप लोग 15 अगस्त पे टिक मार के चले जाते हो. 15 अगस्त पूछा गया तो 26 जनवरी पे टिक मार के चले जाते हैं. ठीक है. तो कंफ्यूज नहीं होना इसमें. रिपब्लिक डे ऑन 26 जैन एंड इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त. ठीक है. क्योंकि ऑप्शन में जब भी इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो ऑप्शन में दोनों डेट होंगी. 15 अगस्त भी होगा और 26 जनवरी भी होगा. गारंटेड है, ये दोनों ही ऑप्शन में होंगे. तो याद रखो, रिपब्लिक डे 26 जन को एंड इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन.
What is the national anthem of India? Yes, good. Jan Gan Man. Good. अच्छा, नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया बताओ चलो। वाह, क्या बात है। मैं ट्रेन की बात नहीं कर रहा हूं, वंदे भारत। टाइपिंग में इतनी जल्दी ना कर दो कि वंदे मातरम का वंदे भारत हो जाए। द नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम। गुड। अब क्वेश्चन इस पे दो बनते हैं कि वंदे मातरम किसने लिखा है एंड जनगण मन हमारा नेशनल एंथम किसने लिखा है। Who wrote the national anthem Jan Gan Man and who wrote the song national song Vande Mataram? Very good. Good. Very good, everyone. वेदांश तिवारी, दोबारा अगर तुमने ऐसी हरकतें की तो मैं क्लास से बाहर हो गए। ठीक है। हम्म। बी इन द बी इन द लिमिट। सो नेशनल एंथम इज जनगण मन। जनगण मन लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन लैंग्वेज बंगाली। ठीक है। हाँ, पूछा जाए कि जनगण मन सबसे पहले नेशनल एंथम किस लैंग्वेज में लिखा गया, दैट इज बंगाली। ठीक है। दूसरा, नेशनल सॉन्ग दैट इज वंदे मातरम, दैट इज रिटन बाय बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the design or symbol in the center of the white line of the Indian flag called? Very good. Good. The answer came already. Yes, good. Now मैं ले रहा हूं वैदिक, शिवांश, युनय एंड श्रद्धा। ये चार लोगों का सबसे पहले मैसेज आया। एक लोगों को और है ईशा सिंह का, लेकिन वो चक्र नहीं, उसे अशोक चक्र कहते हैं। ठीक है, चक्र नहीं है उसे। हम्म, ठीक है। नाउ इसी पे एक क्वेश्चन आता है, आई थिंक नेक्स्ट होना भी चाहिए कि उस अशोक चक्र में कितने स्पोक्स हैं। हाउ मेनी स्पोक्स इन द अशोक चक्र? गुड। चलो बताते हैं। सबसे पहले मैसेज आया यूनानिमस। गुड। 24। गुड जॉब। नेक्स्ट। हाँ देखो, ये क्वेश्चन आ ही गया। 24 स्पोक्स। इसका आंसर ऑलरेडी यूनानिमस ने पहले दे दिया था। गुड। जब मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करता मुझे याद था कि ये क्वेश्चन मैंने डाला था, लेकिन जस्ट बात डाला इसका पता नहीं था। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, which is the longest river that flows through India? Very good, very good, Vedic, Vedic and Vedans. Good. That is Ganga. अच्छा, ये बताओ, which is the longest river that flows in the world?
In the world, which is the longest river? Very good. The first one is Atha Dwivedi. So answer is correct. That is Nil Nadi. Okay. Then tell me the largest river in the world. Yes, Nil is the longest, but largest. I got the answer. Yes, very good. ईशा सिंह पैसिफिक ओशियन की बात रिवर की बात करी. That is Amazon. Amazon river is the largest river. ठीक है. Nile is the longest. Yes. Near about I think 5 to 7 countries से Nile river गुजरती है. But the largest one by volume, that is Amazon. And one more thing about Amazon. Amazon forest creates near about 20%, produce 20% of oxygen of the world. पूरे वर्ल्ड का 20% ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ अमेजोन फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस करता है. ठीक है. तो लॉन्गेस्ट बोले तो नील है, बट लार्जेस्ट बोला जाए तो अमेजोन रिवर. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज द नेशनल गेम और स्पोर्ट ऑफ इंडिया? फिलहाल कोई नहीं है, किसी गेम को नेशनल गेम बिल्कुल ऑन पेपर नहीं कहा गया. बट हाँ, पहले ऑन पेपर था, दैट इज हॉकी. हॉकी को नेशनल गेम या स्पोर्ट्स कहा जाता है, बट अब नहीं. अब इसको ऑफिशियली ये नहीं. ठीक है ना. नेक्स्ट, what famous monument in Agra is made entirely of white marble and it's on the wonders of the series? ये पूछ लो कि आगरा में सबसे फेमस मॉन्यूमेंट बता दो यार. सिंपल. एक आगरा में अगर फेमस मॉन्यूमेंट तो एक ही है ही, और कोई है ही या नहीं. ओके, देयर इज वन मैसेज. मैथ्स क्लास, सो मेंटल मैथ की क्लास एक ही चलेगी सर, एक ही चलिए, फर्स्ट क्लास. ठीक है. उसमें मैंने बताया कि प्रैक्टिस कैसे करनी है. ठीक. उसी हिसाब से आप प्रैक्टिस करते हैं. आंसर यस. इसका इस क्वेश्चन का आंसर ताजमहल इकलौता मॉन्यूमेंट आगरा में है. बट दिस मॉन्यूमेंट इज इन द लिस्ट ऑफ 7 वंडर्स. ठीक है. मॉन्यूमेंट इकलौता है पूरी आगरा में, लेकिन इट्स 7 इन द 7 वंडर्स. 7 दुनिया के 7 अजूबों में इसका नाम भी आता है. इसलिए नहीं आता कि ये व्हाइट मार्बल या, बल्कि इसलिए आता है क्योंकि इसका जो बेस है दैट इज वुडन, लकड़ी का. नदी के पास है, लकड़ी का बना हुआ, और अभी तक वो खराब नहीं, इसलिए इसको 7 वंडर्स में नाम डाला गया है. नेक्स्ट, व्हाट इज द नेशनल एक्वेटिक वाटर एनिमल ऑफ इंडिया? ये तो आसान है. यस, दैट इज डॉल्फिन, रिवर डॉल्फिन. कैसे? ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट? अब ये क्वेश्चंस, इस क्वेश्चन में सेम क्वेश्चन इन द लॉजिकल भी पूछता है. बस वो क्या कहेगा, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश, लास्ट का वर्ड अल्फाबेट हटा देगा. 26 लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट होते हैं, दैट इज द राइट एनर्जी के. लेकिन लॉजिकल में अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन इंग्लिश, देन द आंसर इज 7. बिकॉज उसने ये नहीं बोला इंग्लिश पूरे
पूरे इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं? जो वर्ड लिखा है इंग्लिश, इसमें कितने लेटर्स हैं? ठीक है, तो लॉजिकल में ही पूछ सकता है, नॉट इन द जीके, इन द लॉजिकल। ठीक है, लॉजिकल्स में ऐसे क्वेश्चन जरूर अक्सर पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी मंथ्स हैव 28 days? हाउ मेनी मंथ्स हैव 28 days? सबका आंसर आएगा 1, लेकिन आंसर इज 12। सभी महीनों में, सभी मंथ्स में मिनिमम 28 डेज तो होते ही हैं। बट अगर क्वेश्चन ये पूछता कि हाउ मेनी मंथ्स हैव ओनली 28 days, देन वी से दैट इज फेब्रुअरी। ठीक है, तब हम कह सकते हैं फेब्रुअरी। लेकिन अगर तो क्वेश्चंस को ध्यान से समझना और पढ़ना, लॉजिकल के खास करके। आप जो मेंटल मैथ, जीके और स्पीड एनालिटिक्स से टाइम प्रैक्टिस से टाइम बचा करके लॉजिकल में लगाओ। ठीक है, और लॉजिकल में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं, आराम से। ठीक है, जल्दी करना है, जल्दबाजी नहीं। बिकॉज जल्दबाजी का काम शैतान का होता है और जल्दी का काम बुद्धिमान का होता है। ठीक है, कहावत में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। व्हाट पंक्चुएशन मार्क डू वी पुट एट द एंड ऑफ सेंटेंस दैट आस्क समथिंग? तो क्वेश्चन में ये आंसर है, दैट इज क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हम क्वेश्चन मार्क मार्क का लगाते पंक्चुएशन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, what do we call a word that sounds the same as another word but has a different meaning and spelling, like C and C? यानी अभी इसमें थोड़ी सी मैं बहुत कंफ्यूज होता हूँ, बिकॉज एग्जैक्टली मुझे भी नहीं, ग्रामर में थोड़ा सा, इंग्लिश ग्रामर थोड़ी सी गड़बड़ है मेरी। पहले सुन लो, सी 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 नहीं आंसर है। तो पूछा है कि उन वर्ड्स को क्या कहते हैं जो जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, साउंड सेम होता है, बट उनका मीनिंग अलग होता है। ठीक है, तो उसमें कई सारे एंटोनिम्स, सिनोनिम्स ये सब होते हैं, और मैं कंफ्यूज होता कि किसको क्या कहा जाता है। तो मुझे नहीं पता, आंसर इज होमोफोन। होमोफोन में साउंड सिमिलर होगा बट मीनिंग्स डिफरेंट होगी। ठीक है, सी 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 सी। नेक्स्ट, if you have two pair of shoes, how many single shoes do you have in total? Yes, that is 4। टू पेयर ऑफ शूज हैं, तो टोटल जूते कितने हुए? टोटल शूज कितने हुए? सिंगल सिंगल 4, है ना? बिकॉज एक पेयर में 2 शूज होते हैं। नाउ व्हाट डू वी कॉल द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड चाइल्ड? चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या होगा? अभिश्री गुप्ता, वैदिक अग्रवाल, गुड। जियांस, तुम अभी 4 पे अटके हो यार, हैं? ओके, द आंसर इज चिल्ड्रन। यस, चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म चिल्ड्रन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, what shape has 3 sides and 3 corners? Good, Shastik Dudu. Good, that is triangle. ठीक है, now next, what do we call a word that has the same or very similar meaning to another word, like large and big? यानी इस बार क्या कहा है, मीनिंग नियर अबाउट सेम होगी, वर्ड अलग अलग होंगे, यानी साउंड डिफरेंट होगा बट मीनिंग नियर अबाउट सेम होगी। उसको क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड सिनोनिम।
ठीक है, अब मुझे क्लियर हो गया। सिनोनिम इज द, जैसे मीनिंग सेम होगी, वर्ड अलग में, होमोफोन्स में साउंड सेम होगा, मीनिंग अलग होगी, और अपोजिट वर्ड्स को क्या बोलते हैं? लार्ज का स्मॉल अगर हो गया तो क्या बोलेंगे उसको? यस, एंटोनिम्स। गुड। मेरी ग्रामर थोड़ी वीक है, क्या करें, इसीलिए ट्वेल्थ में मैंने ग्रामर, जब नहीं थी ट्वेल्थ में सीबीएसई में ग्रामर नहीं थी, मैं बड़ा खुश हुआ। चलो, अब ग्रामर नहीं पढ़ना पड़ेगा। Now, which standard domestic coin or note has the smallest value currently used in India? That is 1 rupee. 1 rupee. Good. You know only दिखाई one. Good. Next. What shape is round like a coin or wheel and has no corners? Yes. Good. That is circle. Shape पूछा है. Now the next. What number comes immediately before the number 100? 100 से just पहले. मुझे शक हो रहा है यार, कोई इतना फास्ट कैसे हो सकता? पक्का आप सब सेकंड क्लास में हो ना? लग रहे भाई, 100 से पहले 99,999 नहीं आता, सिर्फ 99 आता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। What major festival is known as the celebration of the birth of Jesus Christ? Very good. Good. That is Christmas. Good. So today's 50 questions over. Now the next class will be on Friday. मैं अभी बता दे रहा हूँ, next class will be on Friday. ठीक है, at same time.